Find the equation of the circle. Find the equation of the circle described on the chord. Described on the chord x cos alpha plus y sin alpha is equals to P of the circle x square plus y square equals to a square as its diameter. Find the equation of this circle described on the chord x cos alpha plus y sin alpha equals to P. It's a chord of this circle. And the chord should act as a diameter. पहले क्वेश्चन को डाइजेस्ट करो 2 मिनट या 2 मिनट पे ज्यादा 1 मिनट में समझने की कोशिश करो. Once you understand the question, you can solve it. Question on the board. Let us find the equation of the circle described on this chord of this circle. सबसे पहले एक सर्कल एक लाइन दे रखा है, बस उसको रैंडमली बना लेंगे. X square plus y square equals to a square is of course we know how it is. This is x square plus y square equals to a square. इसका एक chord है, उस chord का इक्वेशन दे रखा है. उस chord का इक्वेशन दे रखा है x cos alpha plus y sin alpha equals to P. Actually, technically speaking, chord is only this much length. Only this much length is the chord. तो अभी एक ऐसा सर्किल बना रहे such that this chord is acting like a diameter of that circle. Such that this chord is acting like a diameter of the circle. So you guys can imagine how the circle is going to be now. Smallest circle of the family. We are interested in this circle for which this chord is a diameter. This is the circle which I am interested in. Since this required circle is passing through the intersection of this circle and a line, so I can assume this required circle as let this required circle be x square plus y square minus a square plus lambda times x cos alpha plus y sin alpha minus p is equals to 0. So वहां से स्टार्ट कर रहे हैं. Let my required circle be s plus lambda l equals to 0. Now lambda ढूंढने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करना है? 1 मिनट और सोचो. ये दोनों पॉइंट से बहुत सारे सर्कल्स पास करेंगे. आउट ऑफ ऑल यस बोलो. अभी जस्ट नाम बोल के छोड़ मत दो, उसके आगे भी बताना जो भी कोई भी बोल रहा है. तो ऐसे नहीं कि सर्कल चैप्टर यूज करेंगे या यशोवर्धन टाइप सॉल्व कर देंगे. कैसे सॉल्व करेंगे बताएगा नहीं. सर दोनों को सॉल्व करके मतलब सर्कल एंड लाइन को
ए एंड बी का तो इक्वेशन मतलब ए एंड बी के पॉइंट्स मिल गए एंड फिर उसको डायमेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे तो Definitely, Soham. That is a good approach. Let me call your method as method 2, which I'll discuss in some time. That is perfectly correct. But Soham, while solving, you don't need to find actually the points, if you can realize that. Smartly कर सकता है. तो मेथड 1 में हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल्स यूज कर रहे हैं. फैमिली ऑफ सर्कल्स यूज करने के लिए कोई बता सकता है कि लैम्डा को कैसे ढूंढना चाहिए. हाउ शुड आई फाइंड लैम्डा? What condition should this red circle follow so that it will satisfy the given condition? मतलब what is special about this circle? Out of so many circles, what is special about this circle? इसका सेंटर है ना, वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा. Yes, because AB diameter है, तो center of the circle lies on the line AB. Center will lie on the line AB. इस सर्किल का सेंटर क्या है? lambda cos alpha by 2 minus Minus- lambda cos alpha by 2 minus lambda cos alpha by 2 comma minus lambda sin minus alpha. lambda sin alpha by 2. This should satisfy the line x cos alpha plus y sin alpha minus p is equals to 0. Substitute करो, satisfy करना चाहिए. Substitute करो, lambda का value मिल जाएगा. After getting the value of lambda, you know what to do. Just continue this method जो भी कर रहा है. Method 2, so हम those who, if somebody is curious, you guys can listen and then we'll give you some time to copy this down. Method 2 में क्या करना है कि x1 y1 x2 y2 points है a और b. तो rather than using this family of circles, what is saying is this is a brute force method. मतलब of course सोचे बिना just go about it, which is good advice also in coordinate geometry. He's first thinking कि a और b मिल जाएगा. If I can find a and b, then the answer will be x minus x1 into x minus x2, yes, plus y minus y1 into y minus y2 is equals to 0 because AB is the diameter. Now what Soham is trying to think is x1 y1 x2 y2 मिलना चाहिए. Now x1 y1 x2 y2 कैसे मिलेगा? Solving मतलब यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्विंग में? x square plus y square minus a square सर्किल है और दूसरा है लाइन की इक्वेशन है, उसमें से x या y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें. करेक्ट. लाइन के इक्वेशन में y का वैल्यू हो जाएगा माइनस x cos अल्फा प्लस p डिवाइडेड बाय sin अल्फा. ठीक है, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे सो हम, तो विल गेट ए क्वाड्रेटिक. यस सर. वो जो क्वाड्रेटिक है उसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं सर, वो रूट सी हो गया ना. दैट इज करेक्ट वेदांत. सो हम समझने की कोशिश कर. वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x जो आएगा, मतलब समथिंग इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देगा तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x इक्वल टू 0 तो आएगा. हाँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ये चीज है कह रहा है वेदांत. ओके. हाँ सर, राइट. समझा क्या? यस सर. हाँ, तो ये क्वाड्रेटिक फर्स्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहाँ डंप कर देंगे. सिर्फ नेक्स्ट टाइम y को सब्स्टिट्यूट करने की जगह x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इन y आएगा. दैट इज द सेकंड एक्सप्रेशन. यस सर. ठीक है, दैट इज आल्सो वेरी फास्ट ओनली इफ यू थिंक. हम पॉइंट्स ढूंढ ही नहीं रहे. ओके, बस एक चीज ध्यान रखना वेदांत सोहम एंड एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड इन द सेकंड मेथड, ये दोनों एक्सप्रेशंस को, दोनों क्वाड्रेटिक्स को एडिशन इज इक्वल टू 0 इज द आंसर. इट इज जस्ट दैट दोनों क्वाड्रेटिक्स के कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर सेम रखना है, वरना सर्किल ही नहीं रहेगा. यस सर. ओके, हाँ. चलेगा. किसी का आया कि लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे? हाँ सर, minus 2. -2p कंफर्टेबल वैल्यू. बोलना दर्श, क्या पूछ रहा है? सर ए बी को p cos अल्फा p sin अल्फा p cos बीटा p sin बीटा लेके कुछ मतलब है? एक सेकंड. ए बी को मतलब नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन. normal form of a line तो given है already. So it just means that this line is at a distance of p units from center. इतना ही पता है. हाँ सर, सर्कल का फिर पैरामेट्रिक फॉर्म लगा के. नहीं, एक सेकंड.
P cos alpha, P sin alpha is the parametric form of x square plus y square equals to P square. Yeah, that is something else. ये distance P है origin से इतना समझा. P cos alpha, P sin alpha is any point on this circle. अच्छा So okay, हाँ that is something else only. हाँ उसको a sin alpha एक होता है. Sorry. A sin alpha, हाँ हाँ, A sin alpha, हाँ A sin alpha यूज नहीं करते. फिर A sin theta A cos theta ले सकता है पॉइंट ए को, और पॉइंट ए इसको सेटिस्फाई करेगा. हाँ सर. तो वैसे करके सॉल्विंग ही हुआ सॉर्ट ऑफ. ओके, ये लिख के हो गया तो बताओ. आई गिव यू अनदर Yes, क्वेश्चन. sir. फैमिली ऑफ सर्कल्स यूज करना है ऐसे कोई रूल नहीं है, बट कभी कभी फैमिली ऑफ सर्कल्स विल बिकम एक्चुअली क्वाइट इजी. Like in this scenario also, it's both the methods are good, but first method is preferred. Point of intersection of circle and a circle, circle and a line, ऐसी चीजें दिख जाए तो सोचना एक बार. Okay, Radhan, should I erase this or should I wait? Yes, sir. Okay. Next question is easy question. तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ and definitely you guys can solve it. Definitely you guys can solve it. Prove that x square plus y square minus 2x minus 2 lambda y minus 8 equals to 0. Prove that x square plus y square minus 2x minus 2 lambda y minus 8 equals to 0 is a family of circles. The family of circles passing through two fixed points. Passing through two fixed points. And hence find the points. And hence find the points. Prove that this represents a family of circles and hence find the points. हो गया क्या सॉल्व हो गया यशवर्धन? फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट इट इज अ फैमिली ऑफ सर्कल्स. प्रूव हो गया क्या? प्रूव नहीं हुआ अभी तक. एक्सेप्ट यशवर्धन, बाकी लोगों का कुछ हुआ क्या? डिड यू प्रूव दैट इट इज अ फैमिली ऑफ सर्कल्स?
मतलब क्या अक्षत, समझा नहीं। सबसे पहले फैमिली ऑफ सर्कल्स कैसे दिखते हैं गाइस? तुम लोग ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं कर पाए। सर इस केस में s प्लस लैम्डा l होगा ना? हाँ, एस प्लस लैम्डा एस डैश होगा तो भी फैमिली बोलेंगे, एस प्लस लैम्डा एल होगा तो भी फैमिली ऑफ सर्कल्स बोलेंगे। इतना तो समझ आना चाहिए यार। तुम लोग क्या हाँ। सो रहे हो कि नहीं पता नहीं। ये क्या, ये सर्किल को ऐसे लिख नहीं सकते क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हो गया हाँ s सर, प्लस वो हो लैम्डा गया। टाइम्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इस टिपिकल s plus lambda l is equal to 0 है। Since it is of the form s plus lambda l, this is a family of circles. What kind of family of circles is it? Passing through which points? इसको सॉल्व 2 नहीं, randomly मत बोल। हाँ, yes, correct है। Passing through which two fixed points? Intersection of what? Line and circle. Line and circle. This is the circle. ये line y axis है क्या अक्षत? नहीं सर, ये लाइन कौन सा इक्वेशन है? माइनस 2y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0। आर्या करेक्ट है। जल्दी करो यार, आई विल गिव यू 1 मोर मिनट। अभी अक्षत, सॉरी लक्ष्य, व्हाट डज दैट मीन? किसका क्या भेजा तूने? कोई क्वेश्चन का आंसर है क्या? शुड आई आस्क यू अगेन लक्ष्य और हेलो सर। हाँ, हाय हेलो करने थोड़ी आए हैं, आगे बात करना सर वो उसका मैंने डिस्टेंस भेजा। कि ओ करेक्ट करेक्ट, लेकिन वो ढूंढना थोड़ी था। ढूंढना क्या है? सर मैंने और फिर वहां से सोचा ना कि वाई सर दोनों फिक्स पॉइंट भी भेज देता हूँ। हाँ, सो हम वो आंसर सही है, बस लिखने का अंदाज गलत है। बट आई गॉट व्हाट यू आर सेइंग। Jivtesh is correct. Yeah, Soham, that's right. That is correct, Lakshya. I am very happy that you solved it. खुद से किया ना पक्का? हाँ सर, मैं बता भी सकता हूँ। हाँ हाँ, I'll trust you if you say yes. उसको क्या करना है? हाँ करना वेदांत, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पढ़ के बता रहे हैं। That is correct. यशवर्धन, इसके आगे क्या करेंगे? यस मतलब इसके आगे क्या करेंगे? Deval, are you following? Deval, Caleb, Kevin, Per. Doubt तो पूछो guys. That is correct, Yashovardhan. We have to solve the circle and the line, guys. How long will it take to solve them? X square plus y square minus 2x minus 8 equal to 0 and y equal to 0 और minus 2y solve करना है, y को 0 put करना है। इतना टाइम करोगे तो कैसे होगा solving? So x का जो -2,4 होगा, of course y का वैल्यू 0 होगा, तो ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक पॉइंट रहेगा -2,0 और एक पॉइंट रहेगा 4,0. So these are the 2 points. We can evaluate the points also. Next question. सर हाँ इसमें डाउट, बोलो। ये लाइन होगा, अगर यहाँ पे -2y ले लिया, कोई भी अगर कोएफिशिएंट होगा डिफरेंट तो सेम ही होगा क्या हाँ, फैमिली? या लैम्डा अकॉर्डिंगली वैल्यू चेंज एडजस्ट कर देगा, लेकिन अच्छा। सर्किल वही देगा। ओके Okay. Let us next sum. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle passing through origin
Find the equation of the circle passing through origin and find the equation of the circle passing through origin and points of contact. Points of contact of tangents from origin onto the circle x square plus y square minus 11x plus 13y plus 17 equals to 0. Find the equation of the circle passing through origin and points of contact of tangents from origin onto the circle. फाइनल आंसर मतलब युग क्या चाहिए तुझे? सर पॉइंट्स। पॉइंट्स x कोऑर्डिनेट्स मिले कि नहीं y को 0 डालने के बाद? यस सर। क्या मिले? सर 4 and -2। हाँ तो y 0 है तो x का वैल्यू 4 है, मतलब पॉइंट हो गया 4,0 में। व्हाट आर यू सेइंग? तो ये पॉइंट हो जाएगा x - 2 y 0 है, मतलब these two are the points. यस सर। वही तो फाइनल क्वेश्चन है, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। इक्वेशन 2 मिनट ट्राई करो। क्वेश्चन एक बार रिपीट करोगे? Find the equation of the circle. Find equation of circle passing through origin and points of contact of tangents from origin onto the circle as on the board. Find the equation of the circle passing through origin and points of contact of tangents from origin onto this circle. डाउट है तो जरूर पूछो। कैलेब, दिव्यांशु, बहुत अच्छा किया सोहम। वेरी सर नाइस। आंसर भेजा। सोहम ना जो बात कर रहा है? हाँ हाँ हाँ, मैंने वही बताया कि बहुत अच्छा किया तूने, सही आंसर भेजा। ओके। And understood the method also what you have done, which is a very nice, smart thing to do. क्षितिजा, शौनेश या किसी को डाउट है तो पूछो। मान्या, मानव, रघुराम, पर्व, सिया, तनय, त्राई, बहुत सारे लोग कम बात कर रहे हैं आजकल। विधि, आनंदिता। It was Anandita only, na, that came once to Nerul Center for lecture offline. No, sir, not me.
who was that? Arunima. I think. Arunima भी है ना? I got confused, I guess. वो रेड हाउस में हूँ। Okay, okay, हाँ हाँ। बहुत ज्यादा कौन बात करते हैं, आनंदिता की अरुणिमा? आइडिया तो नहीं है। भेज डिस्कॉर्ड पे बहुत ज्यादा बात करती थी पहले। हाँ सर, वो अरुणिमा। अरुणिमा ही है ना? हाँ, that girl. Okay, sure then. Vedant, that is correct here. I understood your method, Vedant. I just want others also to understand your method. So elaborate, एक सेकंड, elaborate करना वेदांत। सी पहले वेदांत बताएगा, फिर सोहम बताएगा। बाकी लोगों को कोई थॉट प्रोसेस होंगे तो बताना। अभी क्या है यशोवर्धन, तो कुछ भी रैंडम चीजें भेज देगा तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो यू हैव टू एक्सप्लेन मोर। सबसे पहले तूने ऐसा लास्ट क्लास में भी किया था, आई डोंट नो व्हाई, कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हटा दिया और इस लाइन को कुछ तो बोलने लग गया। ऐसा कुछ होता नहीं है सर्कल्स में कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हटा दिया तो वो लाइन ही हो जाएगा जो भी पूछा है क्वेश्चन में। ऐसा कुछ नहीं होता। व्हाट इज अकॉर्डिंग टू फोर्थ इक्वेशन? अरे तू बकवास मत कर, तू थोड़ी देर सोच के अच्छे से समझा मुझे, मतलब ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू मी, डोंट जस्ट टेल मी रैंडम वर्ड्स एंड एक्सपेक्ट मी टू करेक्ट यू। You tell me why you thought that. Now, equation of a circle passing through origin. So there is a point origin and points of contact of tangents from origin onto this circle. Okay, there is another circle here. There is another circle here. तो origin point बाहर है कि अंदर है? बाहर है। वो तो origin substitute करके समझेगा कि पॉजिटिव है। तो origin से बाहर है तो दो tangents बन सकते हैं। origin बाहर है तो there are two tangents that can be drawn. Since there are two tangents, there are two points of contacts also. 2 points of contacts A and B. अभी वापस पढ़ते क्वेश्चन। आंसर आया? आंसर आ गया तो भेजना जरूर। मैं बोल रहा था रुक जाओ, मेरे को अभी थोड़ा सा डायग्राम देख के कुछ आया। ओके, हाँ, यस, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, वैसे भी वेदांत बताएगा। अक्षत, आई थिंक यू आर राइट, आई जस्ट वेरीफाई इट, इट सीम्स करेक्ट टू मी। Now, equation of a circle passing through origin, and the points of contact, and these points of contact. तो ऐसा सर्कल जो ढूंढना है जो इन तीनों से पास करेगा, that is what the question is. Okay, Vedant, can you tell me what did you do? सर, तो ऐसे बोला ना कि ए बी और ओरिजिन से पास करेगा, तो वैसा हमने केसेस देखा है कि इट्स लाइक अ डायमेट्रिक फॉर्म से ही ले सकते हैं। It will pass through the center of the circle. Oh, yeah, Vedant. And सोहम ने भी वही किया। अक्षत, क्या किया तूने? सर वही किया, लाइक पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस है मिड पॉइंट फार्मूला से, मतलब Yes, Center. correct. इसके पहले मैं फैमिली ऑफ लाइन से जाने वाला था, पर फिर दिख गया तो वही मेथड इजी। That is correct actually. अच्छा है, सबने ये सेकंड मेथड ही यूज किया है। जो इन लोगों ने बोला सबसे फास्टेस्ट मेथड है, ये हमें ऐसा सर्कल ढूंढना है, जो ओ ए बी से पास कर रहे हैं। तो they are just remembering that we have done this before also. ये ओ ए बी वाला सर्कल जो है, कि इसके सेंटर से पास करेगा? Will it pass through the center of the circle, given circle, center जो कि इसका सर्कल का 11/2 minus 13/2. How can we be sure that it will pass through the center? Angles in a semicircle are 90 degree. Yes, तो ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो इसीलिए ये है। तो हमें we can just solve it. अक्षत, अगर जब हमें डायमेट्रिक एंड्स दे रखे हैं, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखने का और फास्टर तरीका है ना अक्षत? हमें एक्चुअली डिस्टेंस है वो सेंटर Yes, मिड पॉइंट का I नहीं understand. लगता सेंटर। what is the faster method? समझ गए। बता। डिफरेंट मेथड सोचा। हाँ, मैं सुनता हूँ जितेंद्र। एक्स कैन x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. Okay, यशवर्धन, तो होश में आया कि क्या है? Okay, now ये मेथड में किसी को डाउट है क्या? Anybody in the class? No, sir. Okay, now Jinendra will tell another method. बता जिनेंद्र। हाँ सर, दोनों टेंजेंट्स 0,0 से, तो फिर ए बी जो रहेगा वो एक लाइन रहेगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट,
तो Okay. फिर वो एक और second, let me just slow it down for you. That is perfectly correct. What he's saying is 0 0 है, 0 0 से दो tangents बनाए हमने, दो tangents बनाए और दोनों tangents के points of contact को join करने वाले line, ये जो line है, इसको हम लोग बुलाते हैं chord of contact. इसको हम लोग बुलाते हैं chord of contact. इस क्वेश्चन में chord of contact ढूंढ सकते हो क्या? हाँ सर, t is equal to 0, Yes. 0 Chord of contact हमेशा t is equal to 0 होगा. t equal to 0 orally कर सकते हो क्या? इस सर्किल के हाँ लिए सर. t क्या होगा? minus 11 by 2x plus 13 Yes, by thank you. 2. X into x1 is 0 only. So yes, that is correct there. Minus 11 by 2x plus 13 by 2y हाँ, plus plus 17. 17. हाँ, Plus 7. तो अब ये इस chord मिल गया. Yes, correct. अब बाद में 0,0 यानी कि उसका c कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए पूरे लास्ट वाले सर्कल का. तो फिर Yes. हम लोग कांस्टेंट टर्म 0 करेंगे तो फिर लैम्डा हम लोग को से -1/2 आएगा. Perfect. सही है. वैसे भी कर सकते बीच में थोड़े स्टेप स्किप किया. I'll just tell for others to understand that is correct. Now he's saying जो मेरा required circle है वो जो मेरा required circle है वो दोनों इन दोनों points of intersection of this line and circle से पास कर रहा है. ऐसा सर्किल ढूंढना है जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्किल से पास कर रहा है. तो लेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन बी s प्लस लैम्डा टाइम्स l. लैम्डा टाइम्स l इक्वल्स टू 0 किया. s प्लस लैम्डा l इज इक्वल्स टू 0 किया. फिर लैम्डा ढूंढने के लिए ही इज सेइंग कि ये ओरिजिन से पास करना चाहिए. तो लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा. फिर विल पुट इट बैक फॉर द सर्किल का इक्वेशन. उसका मेथड भी समझे ना? यस. फैमिली ऑफ सर्किल्स क्रिएट किया क्योंकि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दो मिले, दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं. मतलब हमने एक सर्किल और एक लाइन ढूंढ लिया, एक सर्किल और एक लाइन ढूंढ लिया जो उन पॉइंट से पास करेगा और फिर फैमिली ऑफ सर्किल्स यूज करेंगे. दोनों मेथड्स अच्छे हैं. इट इज जैसे फैमिली ऑफ सर्किल्स कोई कंपल्शन नहीं है बट इट इज ऑफनली यूजफुल स्पेशली सर्किल पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स जैसा चीज होगा. तो इसका और एक कॉम्प्लिकेटेड वेरिएशन करवाता हूँ. ये हो गया तो बता रहा. हाँ सर. सबको हो गया? एवरीबॉडी इन द क्लास? Yes, sir. बहुत फास्ट लिखते हो. हाँ यशवर्धन, ऑफ कोर्स यू थॉट द रॉन्ग डायग्राम. मर्जी नहीं है, क्वेश्चन में जो है वो करना है. राइट ऑन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल. Find the equation of the circle passing through. Find the equation of the circle passing through -1, 2. Find the equation of the circle passing through -1, 2 and touching the circle x square plus y square minus 8x plus 6y equals to 0 at origin. Find the equation of the circle passing through -1, 2 and touching this circle at origin. तो 2 सर्कल आएंगे ना. वो तो पता चलेगा. एक में डायग्राम देख के सोचा. डायग्राम मैं 1 मिनट के बाद बताऊंगा तो अच्छा रहेगा. नहीं चलेगा. ओके मानिए, म्यूट करता हूँ. डायग्राम अभी बना दूं कि तुम लोग सोचोगे 1 मिनट? सर सोचेंगे. सोचेंगे. आंसर ही आएगी. एक सर्किल गिवन है, उस ओरिजिन किधर है अंदाजे से मार्क करो. ऊपर है, बाहर है, अंदर है. फिर वो लाइन, सॉरी वो पॉइंट क्या है, सर्किल कौन सा सर्किल ढूंढना है. So point inside the curve positive, no? तुझे एग्जाम में ऐसे डाउट आया ना तो क्या सेंटर पुट करेगा तो नेगेटिव आएगा. अगर तो कोई भी पॉइंट इनसाइड समझ सर्किल पे नेगेटिव ऐसे मान ले. तो वैसे एक्चुअली नेगेटिव रहेगा अंदर. समझ गया.
तो भेजना। आंसर भेजा तूने। मैं चेक करता है, आंसर मुझे एक्यूरेटली याद नहीं है। ठीक सर, हो जाएगा सर। मेथड डिस्कस करता है वेदांत। ऐसे ओरली बता सकता है क्या वेदांत? एस प्लस लैम्डा एल वाला फॉर्म पॉइंट सर्कल के साथ किया, क्योंकि टेंजेंट ढूंढा उससे 0 0 पे, हाँ, और 0 0 पे पॉइंट 0 0 पे टेंजेंट, 0 0 पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या है? 4x - 3y = 0, हाँ हाँ करेक्ट है। फिर और पॉइंट सर्कल x² + y² = 0 हाँ 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 करेक्ट करेक्ट, अच्छा सही किया तूने, सब परफेक्ट मेथड है। आंसर भी जस्ट सब्स्टिट्यूट। हाँ करेक्ट है वेदांत, टू द आंसर। क्वेश्चन ऐसा है कि एक सर्किल गिवन है, इस सर्किल के ऊपर कोई एक पॉइंट है 0 0। एक ऐसा सर्किल ढूंढ रहे हैं जो इस सर्किल को टच कर रहा है 0 0 पे ही। 0 0 पे टच कर रहा है मतलब बेसिकली 0 0 के पास हम लोग इस सर्किल का टैंजेंट बनाएंगे और उस टैंजेंट को टच करेगा सर्किल। There are many such circles possible. 0 0 is the point on the circle. उस पॉइंट को टच करने वाले बहुत सारे सर्कल्स हैं। आउट ऑफ ऑल दो सर्कल्स ऐसा एक सर्कल रहेगा जो -1, 2 से भी पास करेगा। हमें वो वाला सर्कल ढूंढना है। तो तुम लोगों को पहले यार फैमिली जैसा कुछ दिख रहा है क्या? हाँ सर। फैमिली जैसा दिख रहा है तो फैमिली का इक्वेशन ढूंढना। जिनेंद्र करेक्ट है। Yashovardhan, no, this is the thing which you were trying to say from the first beginning of the class. ये फैमिली ऑफ सर्कल्स को कैसे अज्यूम करना चाहिए? S plus Sir, lambda. around the P like a line. S plus lambda L, S क्या है L क्या है वही आइडेंटिफाई करना। लैम्डा मतलब जो L रहेगा वो 0,0 से वो एक लाइन है, तो फिर वे 0 रेडियस। Yes, 0,0 का Tangent क्या होगा। ये लाइन टेंजेंट मींस हाँ हाँ पूरे टेंजेंट एट ऑरिजिन। टेंजेंट एट ऑरिजिन कैसे ढूंढेंगे? T = 0. T is equal to 0। इसका T equal to 0 किया तो -4x + 3y ऐसा कुछ आएगा। हाँ है कि नहीं? I don't know। yes sir। S क्या ले रहे हो? 0 Point मतलब circle very है। small circle। Yes, ये जो पॉइंट सर्किल ले सकते हैं x² x - 0 the whole square plus y - 0 the whole square। वैसे एक्चुअली टेक्निकली नॉट नेसेसरी पॉइंट सर्किल लेना है, we can take any circle out of all of them। We could have taken this circle also actually। हाँ सर, मैंने वही किया, मैंने लाइन ना लेके ना दोनों सर्कल ही लिया। चलेगा, गिवन सर्किल भी ले सकते हैं, पॉइंट सर्किल भी ले सकते हैं, गिवन सर्किल भी ले सकते हैं। इन सारे सर्कल्स में से कोई भी सर्किल ले सकते हैं। सर वो -4x + 3y क्या खास है, कैसे लिया मतलब? टेंजेंट ये लाइन का इक्वेशन। ये लाइन मतलब टेंजेंट Okay, एट sir। ऑरिजिन। टेंजेंट एट ऑरिजिन विल बी इवैल्यूएटेड यूजिंग
t is equals to 0. वो किया किसी ने और लिखा मैंने. क्लियर है ना? ओके, जल्दी करो. लैम्डा ढूंढने के लिए क्या करना है? ऑब्वियसली -1 2 को वो सब्स्टिट्यूट कर यस, -1, 2 पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं. देखो गाइस, बहुत लोग, इफ यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ द डिस्कशन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट है, बी ए पार्ट ऑफ द डिस्कशन फ्रॉम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑनवर्ड्स. उस फैमिली ऑफ सर्कल्स के क्वेश्चंस कर रहा हूं मैं अभी तक. अलग अलग सिनेरियोस में S and L देंगे, तो they'll tease you in different ways, so you just have to calmly think. Drawing a diagram oftenly helps in coordinate geometry. सर Okay. इसके अंदर वाला चेकिंग भी मैंडेटरी था ना कि -1, 2 सर्कल के अंदर है कि बाहर वाला सर्कल है? नहीं, मैंडेटरी कुछ नहीं है. मतलब ऐसे तो जो पॉसिबल सर्कल हो जाता है. कैसे दो पॉसिबल सर्किल हो सकते हैं? मतलब यहाँ -1, 2 है. इस सर्किल का साइज छोटा करेगा तो इससे पास नहीं करेगा, बड़ा करेगा तो भी पास नहीं हाँ करेगा. भाई, मतलब बिना डायग्राम बनाए अगर एनालाइज करना है कि वो -1, 2 हमारे बिना circle- डायग्राम बनाए अगर एनालाइज करना है तो गट फीलिंग को छोड़ के मैथ्स को ट्रस्ट कर, इसको सॉल्व कर. लैम्डा के हाँ. 2 वैल्यूज आए तो दो पॉसिबल सर्किल से एक आया तो एक है बस. अच्छा, ओके समझ. Okay. What about others? Are you guys done writing this? yes Yes, sir. Okay. Next concept. See, next concept is an independent concept than the other. So तुम लोग focus करो, everybody in the class, especially those who are not following till now. Do focus right now. The next concept is angle between circles. Angle between two circles. Okay. Now, angle between two circles के पहले एक 2 मिनट का unnecessary thing, but still for you to understand. Angle between two lines याद है क्या? हाँ हाँ tan सर, theta. m लेके tan theta. Yes, m1 m2 लेते हैं, then tan theta is given as the modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1. यहाँ पे बस लाइंस पे क्या है कि अच्छी बात है कि लाइन का ओरिएंटेशन इस नाम में लिखा स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल ये सब सेम रहेंगे क्या? हाँ Yes. इतना भी दूर मेजर करो, डजंट मैटर ओनली. ठीक है. अच्छा, लेकिन सर्किल्स हो या कोई भी कर्व्स हो, कर्व्स मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े रहेंगे, लाइक ऐसा है, तो ऐसा कुछ है. दे आर 2 कर्व्स. तो यहाँ पे जहां पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मुझे एंगल ढूंढना है. यहाँ पे मुझे एंगल ढूंढना है, तो सबसे पहले डू यू थिंक इट मैटर्स इफ आई एम गोइंग अवे और क्लोज? हाँ सर, इट हाँ मैटर्स सर. क्योंकि Yes. स्लोप चेंज हर एक वो ये point सब पे सेम tan नहीं है ना, theta मतलब कर्व्स है. हाँ, Yes. तो यहाँ पे एंगल मतलब हम लोग बेसिकली ये मीन करते हैं कि उस इंस्टेंट पे इसका एक टेंजेंट बनाएंगे, दूसरे का टेंजेंट बनाएंगे, और उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल ढूंढेंगे. हाँ सर. आइडिया समझ आ रहा है ना? डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइंस एंड एनी कर्व. तो एंगल बिटवीन कर्व मतलब नॉन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ. तो सर्कल्स हो या कोई भी हो, तो उस इंस्टेंट पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल को ही एंगल बिटवीन दी सर्कल्स या कर्व्स करके बुलाएंगे. ठीक है. This is the 2 minutes general knowledge which I wanted to talk. Now, moving on to this circle. So first thing, angle between the two circles के लिए 2 circles होना चाहिए. एक second, it will come back. 2 circles होना चाहिए. So I am literally drawing 2 circles. Okay. Let us call the center of the first circle as C1, center of the second circle as C2, center of this. And commonly we are, let us use some language. अच्छा, ऑल्सो ये पॉइंट जो P है, ये जो पॉइंट P है, C1P का डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस ऑफ सेंटर रेडियस C1P रेडियस 1 मान लेते हैं, और C2P को रेडियस 2 मान लेते हैं. एंड और एक लैंग्वेज हम लोग यूज करते थे, C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स को D मान लेते हैं. ठीक है. दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन गाइस. रेडियस ऑफ दिस 2 सर्कल्स ढूंढ सकते हैं और डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेंटर्स भी ढूंढ सकते हैं. ओके. नाउ first thing, am I talking about this angle C1P C2? Angle between the 2 circles, does that mean that I am talking about these two, No, C1P and C2? Sir. No. But what angle am I talking about basically? जो मैंने अभी बनाया नहीं यहाँ पे.
द एंगल विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज इस जो पॉइंट पी पे पहले लाइन का एक टेंजेंट बना रहे, ठीक है, पहले लाइन को एक हाँ। टेंजेंट बना रहे हैं और दूसरे लाइन को भी एक टेंजेंट बना रहे हैं। समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। दोनों लाइंस को टेंजेंट्स बनाए, मतलब ये जो पॉइंट पी के पास ये टेंजेंट्स है, तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम रेडियस के बीच का एंगल। ऐसा कुछ नहीं है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और रेडियस को ज्वाइन कर देंगे तो दूसरे वाले का टेंजेंट हो जाएगा वो। ना एक का टेंजेंट दूसरे के सेंटर से पास करना चाहिए। थोड़ा विजुअलाइजेशन करने के लिए ना ये समझो कि ये सर्किल को बड़ा करते जाओ, ये सर्किल को बड़ा करते जाओ, तो इतना बड़ा कर दिया तो यहाँ पे देखो टेंजेंट बनाऊंगा तो डू यू थिंक इसके सेंटर से पास करेगा वो? ना सर। नहीं ना, ये समझ आ रहा है ना एवरीबॉडी इन द क्लास? यस सर। तो मैंने जनरलाइज सिनेरियो है, सेंटर से पास कर सकता है, मतलब ऐसे छोटा कर देंगे तो फॉर सम सिनेरियो इट कैन पास थ्रू द सेंटर, दैट इज अ स्पेशल केस, बट फिलहाल के लिए वी विल अज्यूम दैट इट इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर। ओके, नाउ ये जो पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट वेयर मोस्ट ऑफ द एक्शन इज गोइंग ऑन। तो ये पॉइंट P है, ये C1 है और ये C2 है, और यहाँ पे दो टेंजेंट्स भी बन गए, लेट मी ड्रॉ द टू टेंजेंट्स, ऐसे करके दो टेंजेंट्स भी बने, ठीक है। नाउ यहाँ पे कोई एंगल, हमें कौन सा एंगल चाहिए पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। विच एंगल आर वी इंटरेस्टेड? कौन सा? रेड लाइन्स के बीच, दोनों रेड लाइंस के बीच का एंगल। हाँ। तो लेट अस कॉल दिस एंगल एज थीटा। फेयर इनफ? यस। ओके, कौन सा एंगल पता है इसमें, इस डायग्राम में? C1 सर परपेंडिकुलर वो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का, सॉरी 90 हाँ, रेडियस टेंजेंट। करेक्ट। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना रहेगा गाइस? 90। तो ये C1P और कौन सी लाइन के बीच का एंगल पता है हमें? रेड लाइन, टेंजेंट। तो C1P और ये रेड लाइन, इसका एंगल हमें पता है, ये कितना है? 90 डिग्री। और कोई एंगल पता है क्या? तो वही 98 और दूसरा सेंटर। हाँ, कौन सा? ये पूरा, हाँ। ठीक है। और ये जो बचा हुआ एंगल है अल्फा ले लेते हैं, बचा हुआ एंगल है वो अल्फा ले लेते हैं। तो कोई रिलेशन है कि इन सब में? 360 होना चाहिए सर। 360 होना चाहिए। तो थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस अल्फा शुड बी 360 डिग्रीज, और सिंपल वर्ड्स अल्फा विल बी 360 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी 360 180 माइनस, थैंक यू। अल्फा विल बी 180 माइनस थीटा। ये साइड में रखते 2 मिनट। अच्छा, देयर इज अनदर फॉर्मूला व्हिच आई एम गोइंग टू यूज इट टुडे। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोसाइन रूल। कोसाइन रूल पढ़ा है क्या फिजिक्स में? हाँ सर। एक सेकंड, तो क्या छोटा cos रहेगा तो 1 के इक्वल वैसा ही तो होगा? cos नहीं बता था। a स्क्वायर प्लस ये b भी- स्क्वायर माइनस c स्क्वायर वाला। एबीसी अगर ट्रायंगल है और ये हाँ, साइड लेंथ स्मॉल बी स्मॉल सी हुए, तो ऐसे cos a का कोई फॉर्मूला है? हाँ सर है वो b cos a स्क्वायर का प्लस फॉर्मूला याद है क्या? किसी को पता है क्या? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस Yes, squares of the adjacent sides, b square plus c square माइनस minus a square अपॉन divided by 2bc। 2bc, that is correct। ये फॉर्मूला पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अब से याद रख लो, ठीक है, अब से याद रख लो। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ। Should I keep this on the board like this or should I erase this? Will you पता है तुम्हें? रखो ना। लिखना पड़ेगा। ओके, तो एक्चुअली फिर जगह कम पड़ने लग गई। तो लोग नोट कर लेके पहले। सर ठीक है, नोट कर लेना। हाँ नोट कर लो। सब मेरे दिमाग में एक था बात, हम लोग को अगर सपोज हम लोग को एंगल एक सेकेंड, कोसाइन रूल की जगह एक और साइन रूल भी है, पता है क्या? यस, हाँ वो पता है, लेकिन क्या है ये a by sin है, बाय sin इज इक्वल टू 2r वो। b by sin b equals to c by sin c is equals to 2 times the circumradius। साइन रूल कोसाइन रूल, इस क्वेश्चन में साइन रूल यूज नहीं हो रहा है, बट ये दोनों रूल्स ऑफन फेमस ट्रायंगल रूल्स है, साइन रूल कोसाइन रूल। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था कि नहीं? हाँ सर मैं पूछ रहा था कि हम लोग जैसे टैंजेंट्स का एंगल निकाल रहे थे, तो सपोज अभी हम लोग अगर हम लोग की टैंजेंट ओरिजिन से बनाए तो फिर उसका ही स्लोप निकालेंगे, मतलब हम लोग डेरिवेटिव निकाल के, एंड बाद में वो m1 m2 मिल जाएगा तो उसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं ना? हाँ, डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं, बट डेरिवेटिव में ओरिजिन कहाँ से आएगी? नॉट अंडरस्टैंड। मतलब लाइक स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट दैट पॉइंट, तो फिर वो स्लोप तो हम ऑफ द लोग को टेंजेंट एट दैट पॉइंट कैसे ढूंढेगा?
dy by dx of that dy by curve dx में एक सुनना, dy by dx में x and y आएगा ना? हाँ मतलब अगर अपने को p और p पॉइंट पता रहेगा ओ p तो फिर पॉइंट पता रहेगा तो अभी हाँ p पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। p पॉइंट कैसे ढूंढे? वो तो सॉल्व करो और उस कॉर्ड ऑफ किनको सॉल्व करो? कर्व्स को सॉल्व करना पड़ेगा। कर्व्स को सॉल्व करो। बोलना आसान है, करना हाँ मुश्किल है। मुश्किल है बट ये वाला मेथड है ना अगर बाय चांस p पॉइंट दिया है तो। हाँ मैं हेल्प कर रहा हूँ तुझे तेरे मेथड में। सी अगर एक सर्किल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 7 और दूसरा कर्व है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y प्लस 1। अब ये दोनों कर्व्स को सॉल्व करना मतलब डू यू थिंक पहले में से x निकाल के दूसरे में डाल दूंगा, इतना आसान है ये? नहीं 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 ऐसा नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे दो सर्किल्स को? तो उसका कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, इसी बहाने डिस्कस कर लेंगे। तो दो सर्किल्स है, तो दोनों सर्किल्स का ये लाइन ढूंढ सकता है क्या? हाँ सर। कॉमन कॉर्ड बुला लेंगे उसको, ऑफ कोर्स। कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन ढूंढ सकता है क्या? हाँ सर दोनों को माइनस कर लेंगे। यस, दोनों को माइनस कर देगा तो कुछ तो लाइन आ जाएगा, मतलब 5x हाँ सर प्लस बाद में 2y ईच को सॉल्व कर लेंगे। फिर वो लाइन और इस सर्किल को सॉल्व करते हैं, ठीक है? हाँ सर। ओके, तो उससे P आएगा, फिर P आने के बाद फिर डिफरेंशिएट करके वो पॉइंट P जो है दोनों सर्कल्स में सब्स्टिट्यूट करेगा, m1 m2 मिलेगा, फिर tan थीटा इज m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, हाँ तो सर छोटा मेथड कौन सा रहेगा, ये अलग की वो वाला? जो मैं अभी बताऊंगा। ओके। सर साइन रूल में c बाय साइन c इक्वल टू क्या लिखा है? 2r, 2 into capital R. Capital R happens to be the circumcircle of this triangle, circumradius I mean to say. ओके Circumradius of this. सर ये ऑफिशियली कौन से चैप्टर में आता है मतलब ये फॉर्मूला? Properties of triangles as the name. ओके So properties of triangles, properties of triangles में और further ऐसे बोलते हैं कि ABC दे देते हैं values और angle ढूंढने के लिए बोलते हैं. So that is actually solving the triangle. So we can, it's also called a solution of triangle. The same name. Well, हो गया क्या लिख के जिसको लिखना था? मैं आराम से अपना टाइम लेके लीजर में डिस्कस कर रहा हूँ डिराइवेशन, बट डिराइवेशन बाय द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट नहीं है. बाय द एंड ऑफ द डे रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है. c by sin c के बाद is equals to 2r है. हाँ 2r, 2 into हो कैपिटल. गया। ये वापस से जब भी आएगा मैं वापस से बताऊंगा, और प्रूफ्स वगैरह भी इतने डिफिकल्ट नहीं है इनके. वी कैन डू द प्रूफ्स आल्सो. लाइक कोसाइन रूल तुम लोगों ने फिजिक्स में प्रूव किया क्या? सर एनकाउंटर ही नहीं किया, क्या प्रूफ कर? एनकाउंटर नहीं किया? व्हाट आर यू सेइंग? नहीं नहीं हाँ सर सर नहीं. ओके, एनकाउंटर नहीं किया तो मुझे एक क्विक चीज बताता हूँ. तो डू यू नो दैट इन ए ट्रायंगल दैट अगर ये वेक्टर्स हो गए, मतलब ये a मतलब साइड लेंथ की बात ही कर रहे हैं, वेक्टर हो गया मतलब ये a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर है, तो कोई रिलेशन है क्या a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर में? हाँ सर सबका सम क्या? 0. जीरो। सबका सम 0 होगा. a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर के सम 0 होगा. ये सबको पता है ना, एवरीबॉडी इन द क्लास. यस सर. So now I'll just rearrange this one, guys. So b vector plus c vector can be given as minus a vector. What I'll do is I'll apply modulus on both sides. The magnitude of a vector क्या है? A. Now do you know how to find magnitude of a vector plus b vector or b plus c Yes. vector? क्या होता है? root of, ऐसा होता है ना फॉर्मूला, स्क्वायर प्लस c स्क्वायर root of b square plus c square plus 2 bc cos bc into cos of what? Angle subtended between. Angle between Angle b and between- c. Angle between b BAC. vector. Now do you think b vector and c vector के बीच का एंगल a है? पाई माइनस है. Yes sir. पाई माइनस है. That's correct दर्श. b vector और c vector के बीच का एंगल a नहीं है, but 180 minus a है. हाँ सर. समझा क्या जिनेंद्र वेदांत? हाँ। तो यहाँ पे cos क्या लिखो? 180 minus a. बहुत ही छोटा छोटा लिखा है, I hope you understand. तो इसको स्क्वायर cos 180 minus a क्या होगा? ठीक है सर. क्या? sin माइनस Cos. 2 से.
क्या तुम लोग इतने बकवास हो गए? माइनस कॉस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a is equals to a स्क्वायर, तो cos a is b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a हाँ, स्क्वायर सर। अपॉन 2bc। हट, अभी और नहीं बताऊंगा, तुम लोग cos 180 माइनस से नहीं आता तुम लोग को। बाद में रिकॉर्डिंग देख लो, इट्स नॉट वर्थ टेलिंग दिस मच इफ यू कांट डू cos 180। नाउ दिस वन, यहाँ पे बेसिकली C1 C2 और ये पॉइंट P है, और ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है C1P C2। तो C1 C2 हमें पता है डिस्टेंस D, C1P पता है R1 है, और C2P भी पता है R2 है। तो कैन यू कंप्लीट दिस? यहाँ पे कंप्लीट करूंगा तो क्या आएगा? cos अल्फा क्या होगा? R1 प्लस Yes. R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, sum of squares of adjacent sides divided by 2 R1 R1 R2। और अल्फा को किससे रिप्लेस कर देंगे? 180 180 माइनस 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस cos थीटा, which you just discussed। ये माइनस cos थीटा इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। वैसे भी हम लोग मॉड्यूलस लगाने वाले to ensure that acute angle पता है। So in fact by the end of the day this result is for you to remember angle between two circles का ये फॉर्मूला है। cos theta is modulus of R1 square plus R2 square minus D square upon 2 R1 R2। It is very similar to cosine rule। तो यहाँ पे भी cos ही है, तो ये याद रखो, मतलब दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही है। You just have to remember it कम वर्ड में। It is very important concept। बाकी डेरिवेशन वगैरह नहीं समझो तो भी take it easy। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स का ये फॉर्मूला है, cos थीटा इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। कंप्लीट करके बताना। सर फिर एंगल बिटवीन द सर्कल फाइंड करने की पूछते हैं, अल्फा इक्वल टू 180 माइनस थीटा में वो सब्स्टिट्यूट करना है क्या? नहीं जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर एंगल 60 डिग्री आया या हाँ। एंगल 120 डिग्री आया, इट्स द सेम थिंग। ओके, डोंट यू थिंक सो? दो लाइंस है ना, दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल जोड़ना है ना, इन दोनों के बीच का एंगल तो 30 बोलेगा कि 150 बोलेगा? एक ही बात है। तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन में एक्यूट एंगल ही देते हैं, तो इसीलिए मॉड्यूलस लगा दिया। ओके, ये फॉर्मूला लिख लो, cos थीटा इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। अंडरस्टैंड व्हाट इज R1 व्हाट इज R2 सबसे पहले। हो गया सर। ओके सबका, एवरीवन? यस ओके, इसमें फर्दर एक छोटा सा नोट है, विल राइट डाउन दैट नोट आल्सो। आई एम रेजिंग दिस note. This note will include a new name. If the circles are orthogonal, ऑर्थोगोनल मतलब बेसिकली, यस यशवर्धन, ऑर्थोगोनल मतलब बेसिकली एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ऑर्थोगोनल मतलब बेसिकली एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो इफ द सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, देन व्हाट इज द कंडीशन? मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट थीटा बीइंग 90 डिग्रीज। R1 square plus तो R2 थीटा square 90 हो गया equal तो to लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? cos 90 0। cos 90 0 है तो राइट हैंड साइड R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर should minus D square should be 0 और R1 square plus R2 square will be technically exactly D square. This is more commonly used. Okay, इसी चीज को और थोड़ा elaborately करके देना। If the circles x square plus y square plus 2g1x to f1y plus c1 equals to 0, x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 equals to 0 are orthogonal, then अभी डिराइव नहीं कर रहा, तुम लोग ओरली समझने की कोशिश करो। अगर ये दोनों सर्कल्स ऑर्थोगोनल बोले तो हम लोग यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू D स्क्वायर। कैन यू टेल मी व्हाट इज R1 इन दिस इक्वेशन? जी अंडर G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर स्क्वायर माइनस हाँ, G1 प्लस F स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस F1 स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर हो गया।
हाँ यहाँ पे क्या आएगा, G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस C2 आएगा। यस D क्या रहेगा, D किसके बीच का लिख अंडर सकते हैं? रूट जी स्क्वायर G मतलब इन दोनों से, D मतलब इन दोनों सेंटर्स के बीच का G1 डिस्टेंस। minus G2 हाँ the सर whole square plus हाँ, theta. G1 माइनस G2 का स्क्वायर और F1 माइनस F2 हाँ। का स्क्वायर आएगा। लाइक तो एक्सपेंड करेंगे तो कुछ कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? हाँ सर G1 स्क्वायर G2 G1 स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो G2 स्क्वायर वो सब कैंसिल होते हैं, जो बचेगा वो मैं लिख रहा हूँ 2G1 G2 plus 2F1 F2 is equals to C1 plus C2. This is the condition of orthogonality, and this condition is very very commonly occurring from JEE point of view. The most common occurring question from circles is this: if the circles are orthogonal, find something करके बोल देंगे। तो remember these conditions. भूल भी गए तो you guys have to remember this original formula cos theta, angle between the two curves. तो थीटा के दो स्पेशल केसेस लिए 90 डिग्री वाले नोट करके राइट इट डाउन। लिखी हो गया तो बताना। हो गया सर। सबको हो गया एवरीवन? Yes, sir. Yes. ओके, राइट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड the angle, find the angle between the circles, find the angle between the circles, find the angle between the circles, I'll write it on the board, between the circles, x square plus y square minus 4x plus 6y plus 11 equals to 0, and x square plus y square minus 2x plus 8y plus 13 equals to 0. Find the angle between the two circles written on the board. Find the angle between the two circles. Find the angle between the two circles. That is correct, Jivitesh, Vedant. अच्छा किया, बहुत फास्ट किया। बाकी लोग बोर्ड पे ही फॉर्मूला है गाइस। Your job is only to find the radii and distance between the centers.
हर्षद, जिनेंद्र, सोहम, रेडियस 1 रेडियस 2 कितना है? √2 और 2। थैंक यू। R1 √2 आ रहा है और R2 2 आ रहा है, और D डी डिस्टेंस स्क्वायर 2 डी रूट √2 के D कितना आ रहा है? √2 चेक करना सोहम, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर कैसे आया? यशवर्धन बता, कैन यू एलाबोरेट? वेट, यूजुअली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आंसर्स देख के मैं प्रेडिक्ट कर पाता हूँ कि बच्चों ने क्या मिस्टेक किया है, मतलब यूजुअली मतलब आंसर का थोड़ा सा एरर देख के। बट यशवर्धन का आंसर देख के आज तक मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि कहाँ से वो नंबर्स आ जाते हैं। वो मैथमेटिकली सॉल्व करेगा तब। हाँ, इसका आंसर उसने पता है क्या भेजा? √24 भेजा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या नंबर्स के मैनिपुलेशन किया, ऐसे जस्ट 6 4 दिख गया, मल्टीप्लाई कर दिया तूने, ऐसा कुछ किया क्या? पहली बात तो कॉस कहाँ से 1 से बड़ा हो गया? मतलब थीटा √20 थीटा ऊपर से √24। मतलब यूजुअली मतलब आंसर्स करके लगता है कि अरे थोड़ा आंसर से क्लोज है, ज्यादा आ गया आंसर तेरा, प्लस साइन का मिस्टेक है, ऐसे करके मैं करेक्शंस बताता हूँ। यशवर्धन का क्या रिप्लाई दे रहा है समझता ही नहीं है। दैट इज करेक्ट सोहम, बोल सोहम सर, राइट? सर यशवर्धन को एंटी बोल देने का बस। देयर आर 2 सोहम्स टुडे, आई नेवर नोटिस्ड हियर। जरा थीटा ढूंढना है, वहां तक करेक्ट है। जरा युग युग नीचे डिनोमिनेटर पे 2 नहीं आएगा। रेडियस √24 जो छोड़ना, तू करना इसको। रेडियस √24 किसी का भी नहीं है। श्रेया करेक्ट है, जरार करेक्ट है। 11 भूल गया तो भी रेडियस √24 नहीं रहेगा शायद। नहीं, नहीं +11 कर दिया तो हो सकता है ना। क्या प्लस +11 छोड़ दिया क्या? 24 आ रेडियस आ रहा है √24। सर, अगर उसने +11 किया 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर +11 ना, तो 4 + 9 +11। ओ ठीक है, तो रेडियस का आंसर भेजा तुमने फाइनली। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर क्रैकिंग यशवर्धन टुडे। आर्यन यादव, दैट इज करेक्ट, बट ऑप्शन में 45 डिग्रीज रहेगा तो वो भी मार्क करेंगे। दैट इज करेक्ट आर्यन। cos थीटा इज इक्वल्स टू, I am not solving it, it's too easy guys। R1 R2 and D इस वैल्यू में इस सब्स्टिट्यूट करना है इस फॉर्मूले में। cos थीटा -1/√2 +1/√2 डजंट मैटर, मॉडुलस लगा दो तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्रीज। मोस्टली they won't confuse you with another option of 135 degrees, but of course worst case scenario multiple choice में रहेगा तो you need to mark both of them। Well, moving on, ये erase कर रहा हूँ। Try the next question। Find the value of k। That's right, Yug, Yashwardan, finally, yes। Find the value of k। Find the value of k if the circles। Find the value of k if the circles। Find the value of k if the circles x square plus y square plus 2x plus 2ky plus 6 equals to 0 plus 2x plus 2ky plus 6 equals to 0 and x square plus y square plus 2kx plus k equals to 0 are orthogonal। Find the value of k if these two circles are orthogonal। Find the value of k if these two circles are orthogonal। Focus। Sorry, find the value of k if these two circles are orthogonal। एक सेकंड जस्ट, find the value of k if these two circles are orthogonal। Okay, Jinendra,
हाँ सही है लग रहा है। तुम्हारा चॉइस है गाइस, व्हाट एवर यू फील इज कन्वीनियंट, बट एडवांस के लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स एडवाइजेबल टू रिमेंबर 2g1 g2 plus 2f1 f2. Oh, Shreya. Okay, Darsh. Are you guys getting a quadratic or नहीं linear? सर सीधा आ रहा है वैल्यू एक्चुअली। Darsh, सीधा क्वेश्चन है। करेक्ट लिखा क्या है? ओ ओके ओके मिल गया। और मुझे बस श्रेया का आंसर डिफरेंट आया, बाकी सबका सेम आया, तो आई एम गेसिंग द सेम आंसर इज राइट। चेक करें श्रेया, 2g1 कौन सा फॉर्मूला यूज कर रही हो, ये कर रही हो कि दूसरा? Two g1 g2 plus 2f1 f2 equals to c1 plus c2 is what I am choosing. c1 plus c2 is 6 plus k. 2g1 g2 पहले वाले का g1 है, 1k k0 दूसरे का k है और K0. 0. That's right, Shreya. So you'll get k ka value 6 straight away. Of course, it might be possible that you get a quadratic also depending upon the question. That's right, Dash. So basically, orthogonal मतलब एग्जाम में orthogonal मतलब मोस्ट प्रोबब्ली यही होगा, ये कंडीशन याद रख लेना, चलेगा। और एक चलेगा जीवितेश, कॉस वाले फॉर्मूले से भी कर सकता है, थीटा को 90 डिग्री करके। यू आर सॉर्ट ऑफ डिराइविंग दिस कंडीशन ओनली, बट दैट इज आल्सो करेक्ट। किसी और को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में अभी? आई होप नोआ, श्लोक, दीपांशु, दिशा, प्रेरक एंड ऑल आर आल्सो फॉलोइंग। ठीक है, वैसे थोड़ी थोड़ी देर में नाम लेता रहता हूं, बट यूजुअली इट्स यूज दिस ओनली। डाउट है तो पूछो, दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से अगेन एंड अगेन। Okay, Dragan, last small concept of circles. This is the last and final concept. इसके बाद जो भी और एक चीज, कल का लेक्चर आज का लेक्चर हमने मेजरली JEE एडवांस का किया था, except this orthogonal thing. Orthogonal thing is asked in JEE mains also. Mainly family and all is majorly asked in JEE advanced. Other than that, this concept is also only in JEE advanced. Radical axis. After radical axis, I'll tell you a few things which are not there in the portion. You can just hear it one ear and you can leave with the other also. It doesn't matter. No, radical axis. पहले heading लिख लेना, write down radical axis. Radical axis. I'm going to dictate the definition. The radical axis of two circles. This is the definition that you have to remember. The radical axis of two circles. The radical axis of two circles is the locus of a point. The radical axis of two circles is the locus of a point which moves, is the locus of a point which moves such that lengths of tangents, such that the lengths of tangents drawn from it to the two circles are equal. The two circles are equal. The radical axis of two circles is the locus of a point which moves such that the lengths of tangents drawn from it to the two circles are equal. To the two circles are equal. Okay. First things first. Did you guys write down the? Yes. हाँ Now, समझ में भी आना चाहिए। सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट याद है? रूट s1
रूट S1 करेक्ट। यहाँ पे हम लोग दो सर्कल्स की बात कर रहे हैं, दो सर्कल्स की बात कर रहे हैं। ये तो डेफिनेशन है, नाम के लिए है, डेफिनेशन से ज्यादा हमें एक सेकंड, ठीक है। कहाँ तक लिखा? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू द टू सर्कल्स आर इक्वल, ये लिखना था। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू द टू सर्कल्स आर इक्वल। आर यू डन राइटिंग? ओके, नाउ एक सर्किल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और एक सर्किल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो दीज आर द टू सर्कल्स, दीज आर द टू सर्कल्स। ऐसा हम लोग कोई सर्किल, ऐसा कोई पॉइंट ढूंढ रहे हैं, ऐसा कोई पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहां से पहले सर्किल का लेंथ ऑफ द टेंजेंट और दूसरे सर्किल का जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है वो दोनों इक्वल लेंथ के होना चाहिए, वो दोनों इक्वल लेंथ के होना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट का लोकस कैसे ढूंढना है? दोनों को रूट इक्वल S1 is equal to equal। यस, रूट S1 और रूट S1 फॉर द हाँ। सेकंड सर्किल, S1 डैश करके बोल रहा था, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो तुम लोग ओरली कर सकते हैं लोकस, डोंट यू थिंक सो? यस सर। रूट कैंसिल हो जाएगा, S1 हाँ। और S1 डैश सब इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2g1 minus g2x 2g1 - 2f1 - plus f2 G1 2f1 minus f2x 2 times f1 minus f2 y y c1 plus c1 minus c2 is, or in simple words, S1 minus S dash equals to 0 is only the radical axis, दोनों सर्कल्स का सब्ट्रैक्शन। S minus S dash पहले भी कहीं एनकाउंटर किया क्या? yes sir। it's a point of contact, common chord का। कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड, ठीक है। either way, as far as radical axis and common chord are going to be equal if the two circles are going to intersect। फिलहाल के लिए ये समझो, radical axis is the collection of all the points जहां से tangent का length onto both the circles are equal, जहां से tangent का length onto both the circles are equal। such a line is called as radical axis। उसका इक्वेशन ढूंढने के लिए बोले तो all you have to do is subtract both the curves। So this is the equation of radical axis just by subtracting both the curves। इसको सर लिखना अगर इंटरसेक्ट करेंगे सर्कल्स तो अंदर से जाएगा ना सर? यस, इंटरसेक्ट अगर करेंगे तो रेडिकल एक्सिस कैसे रहेगा? डिसकंटिन्यूअस रहेगा क्या? हाँ, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। रेडिकल एक्सिस लाइन का इक्वेशन होगा तो जस्ट सही करे, टेक्निकली बीच के पॉइंट्स पे टेंजेंट्स होगा ही नहीं, बट दिस इज द रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन और कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे अगर दोनों। व्हाट विल हैपन इफ बोथ द सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर? तब रेडिकल एक्सिस कैसे रहेगा? एक कॉमन टेंजेंट मतलब यस, कॉमन टेंजेंट ही हो जाएगा। व्हाट इज दिस कॉमन टेंजेंट नेम डिफरेंटली? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और तुम लोगों को थोड़ी सी फील आनी चाहिए, जो मैं अभी थोड़ी देर में लिख पाता हूँ। दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे और रेडिकल एक्सिस, ये दोनों में कोई रिलेशन है क्या? परपेंडिकुलर रहेंगे। सबको समझा ना? yes पहले ये लिख लो, रेडिकल एक्सिस इज जस्ट गिवन बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द सर्कल्स गाइस, दैट इज ओनली द जिस्ट ऑफ द स्टोरी। सर इसका नाम रेडिकल एक्सिस क्यों रखा? I myself don't know रेडिकल क्यों बोला है, क्या हो सकता है रेडिकलाइजेशन से? आगे सर तो लाइक सेंसरी बनाता, मतलब बेबी बनाता होगा जिसने रखा होगा उसको। सोच के बताता हूँ या फिर रिसर्च करके। यस सर। Are you guys done writing? एक मिनट सर। Sure। बस फाइंड इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, जितना इजी क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। बस इसके थोड़े से प्रॉपर्टी से वो लिखवा के क्लास करके बैठता हूँ। सर्कल्स का मॉड्यूल बहुत बड़ा है, तो मैं एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लिखता हूँ, वो भी बहुत सारे हैं, वो कर लो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बाकी सारे नहीं करो तो भी चलेगा, यू कैन स्किप देम इफ यू वांट टू डू देम आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन। आज जो आप भेजोगे वो ना, मतलब हाँ, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। उसमें मॉड्यूल में ना थोड़े आउट ऑफ द पोर्शन क्वेश्चंस है, वो मैं बता देता हूँ अभी वर्ड्स क्या क्या वर्ड्स है, बट स्टिल वी विल स्किप देम।
किसी को लीजर टाइम में ट्राई करना है तो वो अलग बात है। हो गया सर। हो गया लिखे किसी जरा तेरा भी ठीक है। ओके टेन प्रॉपर्टीज करके लिखना, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस, साइड हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। Okay, first property. Radical axis and common chord are identical. Radical axis and common chord are identical. Radical axis and common chord are identical. Are identical if the circles intersect. Radical axis and common chord are identical if the circles intersect. Simple property to remember. Second property. हो गया लिखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी। यस सर। Okay, second property. Sir, and common chord are identical if The circles intersect. Circles intersect ही नहीं करेंगे तो common chord होता ही नहीं है ना। There is no Yes. line which is common here. So the circles are intersecting just to be on the safer side. Okay. Second one. Radical axis is perpendicular to the line joining the centers. Radical axis is always perpendicular to the line joining the centers. Radical axis is perpendicular to the line joining the centers. Is perpendicular to the line joining the centers. There is another misconception coming with the second property. Misconception है. Do you think radical axis will bisect both the centers? No sir, not necessary. Not necessary. Not necessary. Exactly बीचों बीच से जाएगा ऐसा कोई रूल नहीं है। वो bisect कब करेगा? जब Equal दोनों radius radius के circle circles Same रहेंगे। radius रहेगा. That is right. Fair enough. Okay. Right on. Third property. Radical axis bisects the common tangents. Radical axis bisects the common tangents. Radical axis bisects the common tangent. Because common tangent मतलब of course there is a tangent which is common to both the circles. तो radical axis भी कही है, radical axis भी कही है, तो ये जो point of intersection है, यहाँ से length of the tangents तो same ही होना चाहिए, so that means it will bisect only obviously. Did you guys understand what did I say? Yes. यस सर। Radical axis bisects the common tangents. Okay, fourth property. Fourth property. लिख लिया तीनों सबने? हाँ। Sure. हो गया तो बताओ। Next one. The radical axis of three circles. The radical axis of three circles. The radical axis of three circles taken in pairs. The radical axis of three circles taken in pairs. Taken in pairs are concurrent. Are concurrent. पहले इसका डायग्राम समझते हैं. Radical axis of three circles taken in pairs are concurrent. मतलब तीन circles की बात चल रही है. तीन circles की बात चल रही है. इन तीनों circles में what I'm saying is इन दोनों का एक radical axis रहेगा. अदर दोनों का एक और रहेगा. एक और लाइन भी रहेगा which is common to radical axis of all of them. The other two. All these three circles are going to meet at a single point. Radical axis of three circles taken in pairs are concurrent. Sir. बोलो. उनके सेंटर्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए ना? Yes, centers को linear नहीं होने चाहिए. That is correct यार. Nicely pointed out. Centers को linear नहीं होने चाहिए. Centers को linear होते हैं तो फिर radical axis सब parallel होता है. Correct. Nice one. Okay.
ये लिख लिया सबने? यस अगर तुम लोगों को तीन इक्वेशंस दे रखे हैं, एस एस डैश और एस डबल डैश, तीन इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स दे रखे हैं, तो तीन रेडिकल एक्सिस ढूंढ सकते हैं क्या? रेडिकल एक्सिस 1, रेडिकल एक्सिस यस सर सब्ट्रैक्ट कर करके हाँ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी ढूंढ सकते हो क्या? हाँ सर यस दो लाइंस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे एक लाइन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे एक लाइन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, दैट पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड एज इज नेम्ड बाय स्पेशल थिंग। ये हो गया डन लिख के? हाँ सर यस सर and this point of intersection or point of concurrency, and this point of concurrency is called as radical center, is called as radical center, and this point of concurrency is called as radical center, is called as radical center. ठीक है, यस सर सबको आगे एवरीबॉडी इन द क्लास? हाँ सर। यस हाँ सर ओके ओके, नोट करके लिखो, नोट, अनदर नोट, प्रॉपर्टी नहीं है बट दिस नोट माइट बी हेल्पफुल in extremely rare questions, but still note. A fourth circle, note में, a fourth circle whose center is radical center, a fourth circle whose center is radical center, whose center is radical center, and radius is the length of tangent. A fourth circle whose center is radical center and whose radius is length of tangent will cut the given three circles, orthogonally, मतलब एक और फोर्थ सर्किल रहेगा जिसका सेंटर ये रेडिकल सेंटर है और लेंथ, रेडियस जो है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, नॉट टू एनी सर्किल, सारे लेंथ इक्वली है, तो दिस सर्किल विल कट ऑल थ्री ऑफ देम ऑर्थोगोनली। सर आप रिपीट कर सकते हो क्या? A fourth circle whose center is radical center, and radius is length of tangent, cuts the given three circles orthogonally, कौन सी टेंजेंट पर? कौन से टेंजेंट की बात कर रहे हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं। कौन सा पॉइंट, कौन सा सर्किल है यहाँ? रेडिकल सेंटर के पॉइंट। हाँ कौन सा सर्किल? तीन सर्किल्स है, तीनों सर्किल्स में से हाँ इस पॉइंट से डोंट यू थिंक तीनों सर्किल्स का लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाएगा? इक्वल होगा यस हाँ, क्योंकि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो वो इन दोनों का लेंथ इक्वल करेगा, इस पॉइंट पे इन दोनों के लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल करेगा। ठीक है, ओके, वन लास्ट प्रॉपर्टी डन। ये हो गया लिख के सबने नोट। There is orthogonal in this diagram. Orthogonal in this diagram is this intersection point. ये show them यहाँ पे, ये जहां पे भी मिल रहा है 6 जगहों पे 90-90 है, समझा ना? मतलब एक सर्किल तीन सर्किल को इंटरसेक्ट करते जा रहा है, तीनों को भी ऑर्थोगोनल है। मतलब ऐसा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ऐसा कोई पूछे एक ऐसा सर्किल ढूंढो जो तीनों सर्किल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो समझो कि उसका सेंटर रेडिकल सेंटर है। पूरे मॉड्यूल में ही मैक्स एक क्वेश्चन रहेगा इसके ऊपर, बट स्टिल आर यू गाइस डन राइटिंग दिस? हाँ कि ना बोला क्या? ओके, वन लास्ट प्रॉपर्टी, the radical center of the three circles, last property,
the radical center of the three circles, the radical center of the three circles, radical center of three circles described on the sides of a triangle, described on the sides of a triangle as diameters. Radical center of three circles described on the sides of the triangle as diameters is orthocenter, is orthocenter. पहले सिनेरियो समझाता हूँ, लास्ट प्रॉपर्टी है, इट्स आल्सो स्लाइटली टफ टू एनालाइज इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट स्टिल क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं पहले। तो ये तीन साइड्स है, ट्रायंगल के तीन साइड्स है, इन तीनों साइड्स लेट मी नेम देम एज टेम्परली ABC। एक हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री सर्कल्स डिस्क्राइब्ड ऑन साइड्स एज डायमीटर्स, पहले उसको डाइजेस्ट करते हैं। डिस्क्राइब्ड ऑन साइड्स एज डायमीटर्स मतलब समझ आ रहा है क्या? आसान की हर एक मतलब साइड AB को साइड मानते हुए, AB को डायमीटर मानते हुए एक सर्किल बनाया गया। समझा क्या एवरीवन? Yes. फिर BC को डायमीटर मानते हुए एक और सर्किल बनाया आपने, BC को डायमीटर मानते हुए एक और सर्किल बनाया आपने। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes. ओके, BC को सर्किल मानते हुए एक और डायमीटर बनाया। तो सबसे पहले यहां समझते हैं, ये दोनों सर्कल्स, जो मैं दो ही सर्कल्स बनाया, तीसरा नहीं बनाया, ये दोनों सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस कहां से पास करेगा? पॉइंट बी और हाइपोटेनस पॉइंट बी से पास करेगा जरूर, वो तो Yes. गारंटी है। Yes. अच्छा, ओके। नाउ ये मान लो ये दोनों सर्कल्स कहीं मिल रहे हैं, ये दोनों सर्कल्स कहीं मिल रहे हैं, तो ये D मान लेता हूं। ये BDA एंगल क्या होगा? 90 होगा। व्हाट अबाउट क्यों 90 होगा? सर सेंटर से पैरेलल है तो क्या क्या किससे पैरेलल है? सर सेंटर से जो लाइन जोड़ेगी दोनों के ए और सी का सर्कल्स की जो सेंटर है उनके से लाइन का पैरेलल रहेगा वो। हाँ, तो और मिड सिंपल, पॉइंट थियरम है ना, और सिंपल सोचो, AB क्या है? AB क्या है? अच्छा हाँ, डायमीटर के अंदर एंगल डायमीटर है गाइस, AB डायमीटर है, AB इज द डायमीटर। और मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये एंगल पूछ रहा हूँ, ये डायमीटर है ना गाइस, डायमीटर। और कितना एंगल इन सेमी सर्कल, और कितना है? ठीक है ना, पक्का? हाँ सर व्हाट अबाउट BDC एंगल? सेम 90. 90 वो भी 90 रहेगा। तो कैन आई से BD इज परपेंडिकुलर टू AC नाउ? Yes. तो BD परपेंडिकुलर टू AC है, तो BD को क्या बुलाते हैं? Altitude. अल्टीट्यूड फ्रॉम B ऑन टू AC। ऐसे एक और सर्किल भी बनाओगे तो वो भी अल्टीट्यूड्स निकलते हैं। तो रेडिकल सेंटर मतलब उन तीनों रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन, तो मतलब तीनों अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन, वो एवेंचुअली हो जाएगा ऑर्थोसेंटर ही। समझा तो ठीक है, वरना जस्ट टेक इट इजी। बस इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कभी एनकाउंटर किया कि तुम्हें ट्रायंगल के साइड्स दे रखे हैं, सर्कल्स बनाओ डायमीटर्स के ऊपर और उनका रेडिकल सेंटर ढूंढो, तो सिंपल वर्ड्स में ऑर्थो सेंटर ढूंढने की कोशिश है। ओके, हो गया क्या लिख के? हाँ So one. इससे ऑफिशियली पोर्शन खत्म हो गया। इसके आगे जो भी मैं बोलूंगा इट इज नॉट देयर इन आवर पोर्शन। सबसे पहले शुड आई टेल दोस थिंग्स और शुड आई जस्ट फॉरगेट अबाउट देम? फॉर श्योर बता सर, यू शुड सर। अच्छा, आई शुड टेल। ओके Sir. ओके, इसके आगे जो भी होगा दैट इज नॉट देयर इन आवर पोर्शन, जस्ट अ फॉर्मेलिटी व्हिच आई एम डूइंग, जस्ट अ फॉर्मेलिटी व्हिच आई एम डूइंग। ओके, फर्स्ट थिंग व्हिच इज नॉट देयर इन आवर पोर्शन is called as pole and polar. Pole and polar. Pole and polar is a combination of a point and a line. A point and a line are named as pole and polar if they are satisfying this condition. Actually, point अगर x1 y1 है, तो line का equation t is equals to 0. तो point अगर ये है और t equal to 0 line है, तो इस पॉइंट को हम लोग पोल बुलाएंगे, और पोलर मतलब t इक्वल टू 0। बस इतना याद रखो, पोलर मतलब t इक्वल टू 0। अभी t इक्वल टू 0 हमने ऑलरेडी बहुत बार एनकाउंटर किया है,
t इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ एनकाउंटर किया है? कॉर्ड ऑफ Tangent at a कॉन्टैक्ट, particular कॉर्ड ऑफ टेंजेंट, कॉन्टैक्ट एनकाउंटर किया है या टेंजेंट। tangent at a particular टेंजेंट। तो अभी बेसिकली अगर कोई पॉइंट बाहर है, अगर कोई पॉइंट बाहर है तो t इक्वल टू 0 एक्चुअली रिप्रेजेंट समथिंग लाइक दिस, कि दो टेंजेंट्स बनेंगे और ये जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ बोथ है ये, तो दिस इज द पोलर, ये पोल होगा। पोल अगर पॉइंट बाहर है तो पोलर इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पोलर इज सेम एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इन दिस सिनेरियो। इस केस में इफ द पॉइंट इज ऑन द सर्किल तो पोलर क्या होगा? tangent. वही लाइन टेंजेंट। Yes, polar will be tangent only. Polar is same as tangent only. Okay. एक और third scenario है, which is not asked, which is not there in our portion. That's why. तो third scenario कौन सा scenario रहेगा? अंदर रहेगा तो Now pole is inside. Now pole is inside. Now यहाँ पे tangent doesn't make any sense only. सबसे पहले हाँ, pole is inside. तो through this pole, I can draw some chord. कोई random chord बनाया। ये दोनों रैंडम कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स बनाए, वो कहीं मिल रहे। ठीक है, एक और रैंडम कॉर्ड बनाता हूँ, एक और रैंडम कॉर्ड बनाता हूँ, एक और रैंडम कॉर्ड बनाता हूँ, उस रैंडम कॉर्ड से एक और दो टेंजेंट्स बनेंगे, वो कहीं और मिलेंगे। ऐसे कितने बना सकते हो? infinite. इनफिनिट। तो हर बार नया नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। Yes. वो ये सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ये सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एक लाइन पे लाइक करेंगे और वो लाइन पे पोलर। हाँ वो मैंने इसको डिराइव किया था। एक क्वेश्चन में उल्टा किया था। हाँ सर हाँ। एक क्वेश्चन में किया था हमने, नाम यूज नहीं किया, पोल पोलर, दैट्स ऑल। तो बेसिकली कुछ खास नहीं है, पोल अगर पॉइंट है तो पोलर t इक्वल टू 0 होगा। वैसे भी ये पोर्शन में नहीं है, कोई क्वेश्चन आएगा तो बिंदास छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ने का मन होगा तो भी t इक्वल टू 0 से तुम लोग गिव इट, यू कैन गिव इट अ ट्राई। ओके, यू वांट टू कॉपी दिस? Yes. ओके, सर वो क्या राइट में क्या है? राइट में डायग्राम है, अगर पॉइंट इनसाइड है तो पोलर लाइन बाहर रहेगा, पॉइंट बाहर है तो पोलर कट करके जाएगा। हाँ जस्ट लाइक दिस, पोल को ऐसे पास मूव कर रहा है तो पोलर राइट, पोल लेफ्ट मूव कर रहा है, पोलर राइट मूव कर रहा है। पोल अंदर आ जाएगा तो पोलर बाहर चलेगा। This was there in portion around 2002-2003 के पहले, तब से modules and all have not been revised thoroughly. सर ये नेम का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब पोल पोलर? वो भी पता नहीं, ये इसका कोई सिग्निफिकेंस मिला भी नहीं, क्यों पोल बुला रहे। वो पॉइंट का नाम क्या है? POL, पोल। ओके, पर वो बाहर पोलर है ना? हाँ, हाँ। पोलर लाइन का नाम है पोल पॉइंट का नाम है। मैंने सॉन्ग 2005 में दिया था जी, तुम लोग कब तक Okay. पैदा हुए थे क्या? सर उसी हाँ। साल That year only. almost. That year only, no? हाँ, So old I am. ये हो गया क्या? सर एक मिनट ना, सर ये मॉड्यूल में भी है, पर ये मॉड्यूल में है दिया है ये। हाँ दिया है, वही मैं कह क्या रहा हूँ, बोल रहे थे मॉड्यूल रिवाइज नहीं किया है। तब से वही कह रहा कि मॉड्यूल में है, you guys can बिंदास skip this. You will not find it in NCERT or anywhere else in standard books. Okay, should I erase this or should I wait more time? कर दो। Interesting तो था यार बहुत, so तो फिर उसके लिए मतलब 11 में पीसीबी का जरूरत नहीं रहता है। नहीं बिल्कुल नहीं, वो लोग फर्स्ट से पढ़ाते हैं। ओके, Coaxial circles, this is also not there in portion, this is also not there in portion, just a formality which I am doing. Coaxial circles भी family of circles जैसा ही है guys, family of circles जैसा ही है, थोड़ा सा उसका amplified वर्जन है coaxial circles। family of circles तुम लोगों को पहले याद है ना, S plus lambda L है,
S plus lambda L है, अगर ये S है और ये लाइन है, S plus lambda L will be a family of circles, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, everybody is clear with this. ओके, यहाँ पे ये सारे इतने सारे सर्कल्स बने, तो कोई भी दो रेड सर्कल्स, कोई भी इनफैक्ट कोई भी दो रेड ब्लैक, कोई भी दो सर्कल्स लोगे, उनका रेडिकल एक्सिस क्या रहेगा? हम लोग का LS लाइन ही। लाइन ही रहेगा। हाँ। इज इट क्लियर अदर्स आल्सो? वापस बोल। कोई भी दो सर्कल्स लोगे इतने फैमिली हाँ। में, उनका कॉमन कॉर्ड या तो रेडिकल एक्सिस क्या रहेगा? LS होगा। हाँ। ये L ही रहेगा ना। Yes. तो इसीलिए फैमिली ऑफ सर्कल्स को हम लोग कोएक्सियल मतलब सेम एक्सिस, कोएक्सियल सर्कल्स बोल सकते हैं। इनफैक्ट कोएक्सियल सर्कल्स इंक्लूड मोर टाइप्स आल्सो। अभी अगर ये सर्कल S है और एक लाइन L है बाहर, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो इस केस में भी S plus lambda L सर्कल बनेगा क्या? पहले इज दिस अ सर्कल S plus lambda L? ना, नहीं, सर्कल नहीं रहेगा क्या? क्यों नहीं रहेगा सर्कल? अच्छा इससे बनेगा ना सेकंड डिग्री। बनेगा ना। बनेगा ना। What about others? What are your thoughts? हाँ सर बने। बने Plus lambda times कहीं तो सर्कल है, 2x plus 3y plus 100 is far away. तो सर्कल, ये दोनों को ऐड करेंगे तो सर्कल तो बनेगा ना जिनेंद्र, बिकॉज डिग्री मैच कर रहा है। हाँ सर, हाँ। इज दिस क्लियर? नो, वो सर्कल कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा क्या? नहीं, मतलब नहीं कुछ है ही नहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही। तो लेकिन लैम्डा चेंज करते जाऊंगा तो हर बार सर्कल तो मिलेगा। यस। ओके, तो अभी मान लो लैम्डा का वैल्यू 2 लिया और एक सर्कल मिला, लैम्डा का वैल्यू 3 लिया तो एक और सर्कल मिला। उन दोनों सर्कल्स का मैं रेडिकल एक्सिस पूछूं तो क्या मिलेगा? लाइन ही मिलेगा। यही लाइन नहीं मिलेगा? देखो हाँ नहीं, सर दोनों यही की- लाइन सर, यही मिलेगा। line हाँ मिलेगा। S minus S। आर यू अंडरस्टैंडिंग इतना? Yes सर। तो S plus lambda L is also collection of circles, is also collection of circles, but ये सर्कल्स का कलेक्शन इस तरीके से कि कोई भी दो सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस निकालो, वो सारे यही लाइन आएंगे, बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन देम। तो ये सारे, इन सारों को फैमिली ऑफ सर्कल्स बुलाने की जगह कोएक्सियल सर्कल्स करके बुलाएंगे। आपने जेई में सिर्फ कोएक्सियल सर्कल, सॉरी फैमिली ऑफ सर्कल्स है जिसमें सर्कुलर लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या सर्कुलर लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे और गलती से तुमने S plus lambda L कर दिया तो भी वो सॉर्ट ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स कर रहे हो। आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, इतने सारे सर्कल्स में से कहने से एक ऐसा सर्कल भी रहेगा जो एक पॉइंट सर्कल हो जाएगा। हाँ सर। हाँ मतलब फील आ रहा है क्या कैसे? मतलब हाँ सर, हाँ। ऐसा एक सर्कल रहेगा जिसका मतलब इतने सारे सर्कल्स में से दो सर्कल्स रहेंगे इनफैक्ट जिनका रेडियस 0 रहेगा, जिसका रेडियस 0 है उसका नाम है लिमिटिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन पहले ऐसे आते थे, फाइंड लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द कोएक्सियल सर्कल्स S plus lambda L। तो तुम लोग को कुछ नहीं करना था, रेडियस 0 करना था, लैम्डा मिलता तो हमें पॉइंट मिल जाता। Okay, this is it. This is all not there in the portion. Three words which are not there in the portion are limiting point, coaxial circles, and polar. These three words are not there in the portion. ये आएगा तो you guys can just ditch them. Yes, RD Sharma में भी नहीं रहेगा और वही, these are all not there in right now in portion. So you guys can leave them also from your planning schedule to solve. और एक होमवर्क मैं डाल देता हूँ। तुम लोगों को लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क दिए ना, या नहीं दिया? नहीं दिया था। लास्ट क्लास में नहीं दिया था लेकिन लास्ट वीक दिया था। ओके, एक फोटो डाल के डाला ना मैंने। हाँ उसी में थोड़े एडिशनल क्वेश्चंस ऐड किए मैंने, उसी में थोड़े एडिशनल क्वेश्चंस ऐड किए, तो दिखने में बहुत ज्यादा लगेगा बट इतना ज्यादा भी नहीं है। वो सारे क्वेश्चंस कर लो, दे आर ऑल लाइक एडवाइजेबल फ्रॉम जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, उसके हिसाब से मैंने दिया है। जो पोर्शन में नहीं है मैंने अवॉइड किया मार्क करना। तो जो मैंने होमवर्क में डाला, अभी मिला क्या फोटो? हाँ सर। हाँ सर, आवाज आया। HA 1 2 3 4 1A 1B दिया है, 2A से भी दिया है, उसके आगे फिर सब्जेक्टिव था तो आई अवॉइडेड इट। पहले इतना कर लो, ये हो गया तो बताना।
यशवर्धन पहले कर ले, फिर बाद में क्वेश्चन बैंक करके पूछना। अगर किसी को चाहिए क्या क्वेश्चन बैंक, आई फील दैट मॉड्यूल इज टू लार्ज। नो सर। नहीं नहीं सर, सर। एक